Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRA practice series, right? So let's begin. We have a special announcement for you, right? So 150K subscriber we have on our channel, right? So that's a big feat for us. And on this particular occasion, right? This particular occasion, pe, what you're offering is a flat discount, right? So you have a 15% discount on all the courses that are available on our website, right? So you can definitely use this particular code, right? ये code use करके तुम कोई भी batch में enroll कर सकते हो and get 15% discount, and this is only limited to the first 100 learners, right? So let's proceed with the set for today, and today we have a set from again CAT 23, right? Slot 1. So first, I would request you to pause this video right here itself, try this at yourself, and then proceed on with the rest of the solution, right? And I'll just hide my photo for a second, right? So you get a hold of the last problem also, right? So take a screenshot here, try this at yourself, and then proceed on with the rest of the solution, right? So let's begin with this particular set. चलो सबसे पहले इसको रीड करते हैं. Let's try to analyze this. Now this set can actually be said कि this is a like set जिसमें number break करना important है. That is one aspect of this. And majorly ये particular set आपका conditionalities के around ज़्यादा revolve करता है, ठीक है? Because of the conditions placed in this. तो इसमें आपकी like A cannot be with B, B cannot be C, ऐसा वाला condition यहाँ पे मिलेगा. So this is something on the conditionality lines, right? So let's try to solve this. So क्या दिया हुआ है? Faculty members in a management school can belong to one of the four departments: finance and accounting, FA, marketing strategy, MS, operations and quants, OQ, and behavior and human resources, BH. The number of faculty members in FA, MS, OQ, and BH are 9, 7, and 5, 3 respectively. So let's keep on writing all the information, all the important information we have. So FA, then marketing and strategy, then operations and quants, then behavior and human resources, that is B and H. ठीक है. एंड रिस्पेक्टिवली इनमें टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स कितने कितने हैं? 9, 7, 5 एंड 3, राइट? सो 9, 7, 5 एंड 3. सो वी हैव दीज फैकल्टी मेंबर्स. नाउ और क्या दिया हुआ है? प्रोफेसर PQRNS, Prakasi, Qureshi, Ramaswamy, and Samuel are four members of the school's faculty who are candidates for the post of the dean of the school. So ये भी हमारे क्या है? Actually में professors ही हैं, right? Faculties हैं. And they are actually the candidates for the post of the dean of the school. So these names are now important for us. So P, Q, R, and S, right? For the post of dean of a school, only one of the candidates was from OQ, right? So now यही चारों एक्चुअली में, अब ये इंपॉर्टेंट है, यही जो चारों लोग हैं ये तुम्हारा इन्हीं डिपार्टमेंट से है. अभी आपको ये नहीं पता कि एफए से कितने लोग हैं, एमएस से कितने लोग हैं, ओक्यू से कितने लोग हैं, बीएस से कितने लोग हैं. सो वी कैन नॉट गो एड एंड अज्यूम कि ये चार लोग हैं तो चारों डिपार्टमेंट से एक एक पर्सन आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, राइट? सो ये कहीं से भी आपके आ सकते हैं. बस एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दी हुई है, ओनली वन कैंडिडेट वॉज फ्रॉम ओक्यू. तो इन चारों में से कोई एक पर्सन है, वो कौन है वो भी नहीं पता, बट वन ऑफ दीज फोर कैंडिडेट्स इज फ्रॉम ओक्यू, राइट? तो ओक्यू वाले डिपार्टमेंट से इन चारों में से एक ही कैंडिडेट है, राइट? जो चार कैंडिडेट आके पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, तो ओक्यू वाले से एक ही कैंडिडेट है. तो बाकी जो तीन कैंडिडेट होंगे वो एफए, एमएस और बीएच से बिलोंग करेंगे, ठीक है? आई होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एवरी फैकल्टी मेंबर इंक्लूडिंग द फोर कैंडिडेट्स, ये चारों को इंक्लूड करके जितने भी फैकल्टी मेंबर, अब जितने भी फैकल्टी मेंबर अगर नोटिस करो तो टोटल कितने हैं तुम्हारे? 7, 3, 9, 5, 14 एंड 10, दैट इज 24 टोटल आपके प्रोफेसर्स हैं, इंक्लूडिंग दीज फोर कैंडिडेट्स ऑब्वियसली वोटेड फॉर द पोस्ट. तो लाइक सब कोई वोट कर रहा है, चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे वो कैंडिडेट ना हो, एवरीवन इज एक्चुअली वोटिंग. तो 24 वोट्स पड़ेंगे. In each department, all the faculty members who are not candidates voted for the same candidate. Now ये इंपॉर्टेंट है आपका कि जैसे मान लो इसमें से कोई भी आपका कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल, ठीक है? एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हमें नंबर्स क्लियर नहीं है, बट मान लो एफए वाले डिपार्टमेंट में टोटल आपके 9 प्रोफेसर है, सपोज इनमें से कोई एक कैंडिडेट है, राइट? सो क्या इसने बोला? ऑल द फैकल्टी मेंबर हु आर नॉट कैंडिडेट. तो अजम्पशन मैंने कह रहा, सिंपल एग्जांपल लिया कि अगर 9 में से एक फैकल्टी मेंबर आपका इनमें से है, दैट इज अ कैंडिडेट है, तो कितने होंगे आपके? 8 फैकल्टी मेंबर बचेंगे. तो वो सारे के सारे 8 मेंबर्स विल वोट फॉर द सेम कैंडिडेट. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया कि वो 8 जहां पे भी जाएंगे ना, जिस भी कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे वो हमेशा सेम कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, राइट? आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू.
नेक्स्ट, the rules of the election are listed below. So there are obviously some rules. Now पढ़ते हैं क्या है rules. First, there cannot be more than 2 candidates from a single department. Now we are actually going to place some restrictions on this. कि जैसे कि 5 में से आपका तो चलो यहाँ तो यूनिक आपको बता रखा है कि इन 5 में से एक कैंडिडेट है, बट उसने ये बोल दिया दे कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट. तो जैसे मान लो एफए का एग्जांपल हम ले रहे थे बार बार, तो 9 में से मैक्सिमम आपके 2 ही कैंडिडेट हो सकते हैं, राइट? मतलब यहाँ आउट ऑफ दीज 9 मैक्सिमम आपके 2 कैंडिडेट हो सकता है एक भी ना हो, 0 कैंडिडेट हो, बट मैक्स टू मैक्स आपके 2 कैंडिडेट होंगे. तो इसका ये भी आप मीनिंग समझ के चलना, जैसे 9 में से अगर आपके मैक्सिमम अगर 2 कैंडिडेट है, तो अदर मेंबर्स कितने बचे आपके? 7. तो वो 7 हमारे क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए वोट कर सकते हैं, राइट? और सारे के सारे 7 एक ही पर्सन के लिए वोट करेंगे. तो जहां पे भी वो 7 जाएगा, जिस भी पर्सन में जाएगा वो एक साथ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है? So there cannot be more than 2 candidates from a single department. Second condition, a candidate cannot vote for himself or herself. Obvious सी बात है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो अपने लिए वोट नहीं करेगा, दूसरे के लिए वोट करेगा. थर्ड पॉइंट, फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट. अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि मान लो एफए का एग्जांपल हम बार बार ले रहे हैं, बट लेट्स से आउट ऑफ दीस 9 कैंडिडेट्स मान लो कोई एक कैंडिडेट, एग्जांपल के लिए एक कैंडिडेट है, तो 8 कैंडिडेट्स बचे, वो 8 कैंडिडेट्स एफए वाले कैंडिडेट के लिए फिर आपका वोट नहीं कर सकते, तो वो कहीं पे और कर रहे होंगे, right? I hope that point is clear to everyone. Now we'll have to figure this out, right? अब और क्या आपके पास नंबर्स वगैरह दिया हुआ है. अब आता है हमारा नेक्स्ट कंडीशन. आफ्टर द इलेक्शन इट वाज ऑब्जर्व दैट पी रिसीव 3 वोट्स, क्यू रिसीव 14 वोट्स, आर रिसीव 6 वोट्स एंड सैमुअल रिसीव 1 वोट. तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स. अब देखो थोड़ा और अच्छे से स्ट्रक्चर करके लिखोगे तो और आपको इजी पड़ेगा. एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि कोई भी पर्सन को जो भी वोट्स मिलेंगे ना, वो दो टाइप के वोट हो सकते हैं. एक तो खुद कैंडिडेट का वोट, राइट? कैंडिडेट मतलब लेट्स से, चलो कैंडिडेट वोट ही लिख सकते हैं, मतलब ये चारों भी तो वोट कर रहे होंगे. सो पी को कैंडिडेट वोट कितना मिलेगा हमें नहीं पता, कि मिलेगा नहीं मिलेगा देखना पड़ेगा, अभी आगे जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट कैंडिडेट वोट हम अलग काउंट कर लेंगे. और नॉन कैंडिडेट मतलब जो अदर आपके प्रोफेसर्स होंगे उनका अलग काउंट कर लेंगे. सो लेट्स से कैंडिडेट वोट्स और नॉन कैंडिडेट वोट्स दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. लेट्स मेक अ क्लीन टेबल आउट ऑफ दिस. एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ था, इनके टोटल नंबर ऑफ वोट्स जितने मिले हैं. तो पी को कितने वोट्स मिले टोटल? 3. तो कैंडिडेट वोट्स प्लस नॉन कैंडिडेट वोट्स मिला के आपका 3 बनेगा. क्यू रिसीव 14 वोट्स, क्यू का 14 आ जाएगा. आर का आपका 6 वोट्स टोटल है. एंड एस को कितना वोट मिला? 1 वोट मिला. नेक्स्ट और क्या इंफॉर्मेशन मिला? पी वोटेड फॉर आर. तो ये जो कैंडिडेट है ये आपस में किसको वोट कर रहे हैं ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो पी वोटेड फॉर आर, तो आर को पी से वोट मिला है, ठीक है? आर को पी से वोट मिला. क्यू वोटेड फॉर एस, क्यू वोटेड फॉर एस, तो एस के लिए क्यू ने वोट करा. देन आर वोटेड फॉर क्यू, आर वोटेड फॉर क्यू. एंड फाइनली एस वोटेड फॉर पी, तो पी के लिए एस ने वोट करा. नाउ नोटिस करो चार ही आपके कैंडिडेट थे, वो चारों नाम तो मैं याद देख चुके हैं. सो ऑब्वियस सी बात है कि हर पर्सन को जो नंबर ऑफ कैंडिडेट वोट्स मिले होंगे वो एग्जैक्टली कितना मिल रहा है? 1 1 1 ईच, राइट? दैट इज वेरी सिंपल. तो बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता है तो नॉन कैंडिडेट वोट हम निकाल सकते हैं. या तो टोटल नॉन कैंडिडेट वोट्स कितने मिले? 3 - 1 से 2, 14 - 1 से 13, 6 - 1 से 5, 1 - 1 से 0. मतलब इसके लिए वो जो ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, ग्रुप ऑफ नॉन कैंडिडेट वोट्स होंगे, उसके लिए नहीं है. इसके लिए किसी भी डिपार्टमेंट वगैरह ने सच वोट नहीं करा है. उसके लिए सिर्फ किसने वोट कर दिया? अकेले क्यू ने वोट करा है. सो ये जितने भी बाकी के नंबर्स होंगे आपके पी क्यू आर में आपके आने वाले हैं. तो हमारा मेन टारगेट ये है कि वो 2 वोट्स किस डिपार्टमेंट के लोगों ने करा, ये 13 वोट्स किस डिपार्टमेंट के लोगों ने करा. तो इसमें तुम्हें ये भी लाइक थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा. 13 इज अ वेरी बिग नंबर. अकेला एक डिपार्टमेंट ये 13 नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पे कम से कम 2 डिपार्टमेंट तो आने ही वाले हैं. 3 तो नहीं आ सकते बिकॉज इन दोनों को भी तो आपको बैलेंस करना है. सो एक थोड़ा सेंस बनेगा कि एफए कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि काफी बड़ा नंबर है, ठीक है? और इसमें भी आपका कोई एक डिपार्टमेंट आने वाला है. नाउ लेट्स स्टार्ट थिंकिंग, राइट? सोचना स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपका नंबर बनेगा. अब एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार यूज करने वाला हूँ वो यही है कि इसने ये बोल दिया था कि किसी भी एक डिपार्टमेंट से मैक्स टू मैक्स आपके 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, राइट? किसी भी एक डिपार्टमेंट से मैक्सिमम आपके 2 कैंडिडेट हो सकते हैं. तो जैसे आप सोचना स्टार्ट करो, यहाँ पे ये 2 कैंडिडेट, सॉरी नॉट 2 कैंडिडेट, 2 नॉन कैंडिडेट वोट्स किस डिपार्टमेंट में आ सकता है? एफए में
टोटल आपके 9 क्या है, प्रोफेसर है। मैक्स टू मैक्स इसमें से 2 प्रोफेसर हो सकते हैं ना, तो मतलब 7 लोग, फिर भी कम से कम 7 लोग किसी एक अकेले पर्सन के लिए वोट करेंगे, तो वो पी में तो नहीं आ सकते। सिंपल सी चीज। एमएस में भी टोटल आपके पास कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, इसमें से मैक्स टू मैक्स आपके 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, तभी आपके 5 लोग पूरे एक पर्सन के लिए वोट करेंगे, तो वो अगेन पी के लिए वोट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है। अब आपका यही लॉजिक अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, ओक्यू में 4 लोग आपके एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे एक कैंडिडेट है ना, सो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 4 ही लोग आपके एक जगह पूरा का पूरा जाने वाले हैं, तो यहाँ पे तो एक्चुअली में यूनिक है ना, तो यहाँ पे 4, इसका भी पार्ट नहीं बन सकता। सो वेरी सिंपल, ये बीएच वाले लोग हमारा यहीं पे आ सकते हैं। और ये क्यों आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 में से क्या होगा, फिर आपका एक कैंडिडेट होगा, क्योंकि बाकी पॉसिबल है ही नहीं, तो इसके लिए 2 कहाँ से आएगा, ऑटोमेटिकली बीएच से आना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये 2 यहाँ से आ रहा होगा, तो ये भी कंक्लूड करता है कि यहाँ पे आपका एक कैंडिडेट रहा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे एक कैंडिडेट होगा, तो वो किसी दूसरे पर्सन के लिए वोट कर रहा होगा डेफिनेटली, बट यहाँ पे जो 2 लोग बचेंगे उस एक उस डिपार्टमेंट के जो 2 प्रोफेसर होंगे, वो पूरा का पूरा एक कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, एंड दैट हैज टू बी दिस नॉन कैंडिडेट वोट फॉर पी। राइट, सो इसमें तुम्हारा कौन आने वाला है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे पीएच, और वो कितने वोट्स देने वाले हैं, टोटल 2। तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा, एक तरीके से आपका ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, एस में कोई आने नहीं वाला है, तो अब बाकी के जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तुम्हारा इसमें आएंगे 13 और 5 बनाने। राइट, 13 एंड 5 बनाने आएंगे। अब जरा आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब नोटिस करते हैं जैसे बाकी के नंबर्स, ये वाला हमारा, इसमें ये 4 कहाँ जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कुछ जाएगा, बिकॉज 2 आपके हो चुके हैं कैंडिडेट्स, तो 2 ही आपके कैंडिडेट बचे, राइट, 2 ही कैंडिडेट होंगे, तो या तो एक एक होगा या तो किसी एक में से 2 होगा, राइट, किसी एक में से 2 का। नेक्स्ट जैसे इफ यू थिंक आर में कौन आ सकता है आपका, क्योंकि आर में आपको 5 बनाना है, राइट, अगेन एफ ए वाले डिपार्टमेंट वाले लोग नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें मैक्स टू मैक्स आपका 2 कैंडिडेट होगा, तब भी आपके कम से कम 7 लोग अकेले इसके लिए वोट करते, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आर में तुम्हारा डेफिनेटली डेफिनेटली आपका एफ ए नहीं आने वाला है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ ए वाले लोग यहाँ पे डेफिनेटली आने वाले हैं। कितने लोग आएंगे अभी वो छोड़ दो हमारी टेंशन, बट एफए वाले लोग डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे, राइट, एफए वाले लोग डेफिनेटली हमारे यहाँ पे आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे ओक्यू वाले में आपके 4 ही लोग जाने वाले हैं, राइट, ओक्यू में 4 लोग किसी एक डिपार्टमेंट के लिए वोट करेंगे, किसी एक पर्सन के लिए वोट करेंगे, सो दैट कैन नॉट बी आर अगेन, बिकॉज आर के लिए तो 5 लोग वोट करने वाले हैं ना, 4 नहीं आ सकता, बिकॉज फिर कोई एक पर्सन किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं है ना, राइट, जो नॉन कैंडिडेट हो। दैट मीन्स ये जो 4 है ओ क्यू वाला, ये हमारा इसी में आएगा, दैट इज क्यू में, राइट, सो इसमें ओ क्यू वाले लोग भी आने वाले। नाउ ओ क्यू का हमें पता है क्लियर कट की 4 नॉन कैंडिडेट वोट्स आएगा, तो ये जो 13 बनना है फिर कैसे बनेगा, 4 + 9 से बनेगा। अब ये ऑलमोस्ट आपका पूरा सेट ब्रेक करके रख दे रहा है, बिकॉज हमें ये क्लियर हो गया कि ये 9 के 9 पूरे यहाँ पे आए, तो इसका यहाँ पे ये मतलब बना कि इसमें 0 आपके कैंडिडेट्स है, तो मतलब बचे हुए जो 2 कैंडिडेट है वो तुम्हारे कहाँ पे आएंगे, एमएस आएंगे, एंड नाउ थिंग्स विल गेट बैलेंस्ड आउट ऑटोमेटिकली। तुम थोड़ा सा नोटिस कर लोगे, अपने आप ही ये बैलेंस आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नोटिस करो, ये आपका कंप्लीट हो गया, एमएस में 2 कैंडिडेट है, मतलब 5 लोग एक साथ कहीं पे जाएंगे, तो वो 5 लोग ऑटोमेटिकली आपका यहीं पे तो जा रहे हैं, क्योंकि वही बचा ही है, राइट, क्योंकि ये तो वैसे भी बैलेंस हो चुका था। सो यहाँ पे कौन वोट कर रहा है, आपका एमएस वाले लोग वोट कर रहे हैं, राइट, सो एवरीथिंग इज नाउ डन आई गेस, राइट, ये पूरा 2 बैलेंस हो गया, 9 + 4 से 13 बैलेंस हो गया, एमएस के यहाँ पे 5 लोग, ये भी बैलेंस हो गया, एंड नाउ वी कैन एक्चुअली मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, राइट। जैसे क्या फिगर आउट करना है अपने को, जैसे ये जो 2 कैंडिडेट्स है वो कौन 2 कैंडिडेट है, राइट, क्योंकि नाम भी दिया होता है ना आपका पी क्यू आर एस, तो इनको बस मैच कराना हमारा एक्चुअली में लास्ट पार्ट बचा है। अब वो कैसे मैच कराए, ये यहाँ पे 2 लोग कौन होंगे, तो नोटिस करो जैसे यहाँ पे ये जो लास्ट वाली कंडीशन दी थी ये, तो एस ने पी के लिए वोट करा, तो डेफिनेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना, कोई भी पर्सन अपने सेम डिपार्टमेंट वाले को वोट नहीं करता, राइट, फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट। तो जैसे अगर एस ने पी के लिए वोट करा है, तो एस और पी कभी भी सेम डिपार्टमेंट नहीं होंगे, सिमिलरली क्यू एंड आर कभी भी सेम डिपार्टमेंट नहीं होंगे, सिमिलरली आर एंड पी भी कभी भी सेम डिपार्टमेंट नहीं होंगे, सिमिलरली एस एंड क्यू भी कभी भी सेम डिपार्टमेंट वाले नहीं होंगे। तो अब ये जो 2 लोग होंगे, यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, किसी एक में 2 है, किसी एक में आपका लेट्स से एमएस में 2 है, ओ क्यू में तुम्हारा 1 है, और तुम्हारा बीएच में 1 है।
ये नाम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो लोग कौन हो सकते हैं, किसका दो पेयर बन सकता है? तो नोटिस करो दो दो के पेयर आपके क्या पॉसिबल होते हैं, पी क्यू, पी आर, पी एस, या फिर क्यू आर, क्यू एस, या फिर आर एस। यही 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं दो दो के। तो इसमें से ये सारे कॉम्बिनेशन हटा दोगे तो दो ही कॉम्बिनेशन बटेंगे। जैसे एस एन पी हट गया, क्यू एन आर हट गया, दिस इज एलिमिनेटेड, आर एन पी हट गया, आर एन पी गॉन, एस एन पी भी हट गया, एस एंड पी, आर एन पी, राइट। और कौन सा कॉम्बिनेशन बचा, एस पी हट गया, राइट, एस पी, यस, एस पी हम काउंट कर चुके हैं, राइट। वन सेकेंड, दिस इज क्यू एन एस, एस एन पी, क्यू एन आर एन पी, एंड यहाँ पे क्यू एन एस, सॉरी। सो एस एन क्यू कभी पेयर नहीं बनाएंगे, सो एस एन क्यू भी हटा दो, ये कॉम्बिनेशन हट गया। मतलब ये जो आपका दो वाला है, इसमें कौन आ सकता है, ये दो में कौन आ सकता है, या तो पी क्यू आएगा या तो आर एस आएगा। सो हैव टू एक्सप्लोर बोथ द पॉसिबिलिटीज। मान लो आपने एक केस में पी क्यू लिखा और दूसरे केस में ये दो में आपने क्या लिख दिया, आर एस लिख दिया। अगर पी क्यू लिखा तो आर स्लैश एस, एस स्लैश आर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आर एस आया तो यहाँ पे आपका पी स्लैश क्यू, क्यू स्लैश पी आना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो केस है ना, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, नोटिस करके देखो। आप ये कह रहे हो कि आर एस, ये जो दो लोग हैं वो एम एस वाले ग्रुप के लोग हैं, आर एस आपके एम एस वाले ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। आर एस तुम्हारे एम एस वाले ग्रुप के लोग हैं, ये दो लोग हमारे आर एन एस होने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नोटिस करो, आर के लिए वोट ही किसने कर दिया, एमएस वाले लोगों ने करा ना, वो पार्ट तो तुम यूनिकली फिगर आउट कर चुके हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर आर हमारा एमएस डिपार्टमेंट का मेंबर है तो आर के लिए एमएस वाले वोट नहीं कर सकते, दैट इज अगेंस्ट आर कंडीशन। तो ये केस एलिमिनेट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा फर्स्ट केस ही वैलिड है, राइट। एंड दिस इज आर फाइनल सिनेरियो, ठीक है। इसमें आप चेक कर सकते हो कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज नहीं होगा, एंड दैट इज अ सेट। नाउ सॉल्व करने के परस्पेक्टिव से ये लाइक इवन दो ये जल्दी हो गया, बट यस इसमें थोड़ा सा आपको कंडीशनैलिटी वगैरह देख के चलना पड़ेगा। नॉट टू डिफिकल्ट आई वुड से, बट यस डेफिनेटली डूएबल एंड ऑन द मॉडरेट साइड, right? Let's take a look at the problems. Which two candidates can belong to the same departments? So दो कैंडिडेट सेम डिपार्टमेंट कौन थे आपके, पी क्यू होंगे, सो दैट इज पी एन क्यू ऑप्शन बी। Which of the following can be the number of votes that Q receive from a single department? Q receive from a single department, या तो 9 मिलेगा या तो उसको 4 मिलेगा। Out of the options C is correct. If Professor Samuel belongs to BNH, तो S अगर तुम्हारा BNH का पार्ट है, राइट, तो RNS शफल हो सकते थे, बट उसने कंडीशन क्या सेट करा कि एस तुम्हारा इसका पार्ट है। अगर एस इसका पार्ट है तो ऑटोमेटिकली आर इसका पार्ट हो जाएगा, बिकॉज आर एन एस वन वन वाले में ही होंगे, राइट। एस इसका पार्ट है, आर इसका पार्ट हो गया। तो क्या बोलना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? पी बिलोंग्स टू एम एस, पी बिलोंग्स टू एम एस, तो पी हमारा एम एस का पार्ट है, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। आर बिलोंग्स टू ओ एन क्यू, तो आर हमारा ओ क्यू को बिलोंग करता है, दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली करेक्ट, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर एक्चुअली करेक्ट। फोर्थ, what best can be concluded about the candidate from O and Q? O and Q वाला जिसको हम बोल रहे हैं क्या, या तो R होगा या तो S होगा। तो it was either P or Q, no. It was Professor Samuel uniquely, no. It was Professor R uniquely, no. It can be either R or Professor Samuel, that is D option. Finally, let's just remove this. Finally, what do we have? Which of the following statements is or are true? Non-candidate from MS voted for Q, right? Non-candidate MS वालों ने Q के लिए वोट करा, MS वालों ने Q के लिए वोट तो नहीं करा, MS वालों ने R के लिए वोट करा, so this is wrong. Non-candidates from FNA voted for Q, Q के लिए FNA वालों ने वोट करा, that is definitely correct. So इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट, या थोड़ा सा ऑप्शन मिसिंग है, इट हैज टू बी ओनली स्टेटमेंट P. Right, so I hope you understood this set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.